The session today is about Google AdWords, which is the inorganic part of advertising on Google. We're going to continue with that. That's where we left off yesterday. What we're also going to do is we're going to go live on a console and we're going to see what it looks like on the Google AdWords console. This is where we left off yesterday. We were talking about the crux of targeting. I was showing you an example of how typically different platforms understand you, you as in you, me, every one of us, whoever interacts and engages on the internet. Everyone is understood by a profile. So every person has a profile that's been created, and different applications that you use, for example, Google, Facebook, uh, YouTube, any application that you use, largely social mediums, define you very well by the actions that you take. Some of the parameters are already mentioned on your screen. This is how a profile of you is created. And there are more such parameters. So as you give more data, as you share more data with the application stores this data on their servers. And hence this data is again available to different advertisers to show ads to different profiles of people. Of course, the names of those people aren't revealed, but brand sees data which says X number of people of so and so profile are available. This is what we did yesterday. Um, थोड़े स्लाइड्स पीछे जाता हूँ. हमने इसके पहले ये भी किया है that there are two types of results. एक है inorganic results जिन पे ads लिखा हुआ होता है. When you search for something, ये सब ads है. और ये है organic results. Organic results Google PageRank algorithm के crawlers लाके देते हैं. Uh, for every business, for every entrepreneur, it's important that his business, his website appears on rank one of organic results. Uh, you have to be page one, rank one. And it's also important if you're running ads that you're ad rank one. इस part के लिए to be page rank one, we've already seen in the last two sessions that to become page rank one, you need to have a very strong SEO. We also said that SEO has two parts, on-page SEO and off-page SEO, within which we said on-page is everything that you do on the front end and the back end of your website, so that आपकी website और friendly हो जाती है Google search engine algorithm से. The Google search engine algorithm starts giving you higher priority. um, the other one is off-page SEO, which means things that you do beyond your website on other websites, social mediums, etc., who build links for you, who say good things about your business, and hence convince the Google crawlers that you are a good website that should show up on search engine result pages. So that's how you do SEO on page and off page. Now I'm coming to the point of ads today. Before I start with ads, the first thing that I told you was on Google or on any application, first of all, how do these applications understand people who are surfing the internet? They understand them by the data that we share with these applications. And here is an example. Now I will go to how do you put ads here. Now, अगर आपको ads दिखाने हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है आपको किन keywords पे ads दिखाना है. Which are keywords which are extremely crucial and essential for your business. अगर ये keywords कोई search करता है तो आपकी website दिखाई देना चाहिए. ये आपका motive है. With that motive, first you need to have a clear understanding कि ऐसे कौन से keywords हैं या कौन से ऐसे words हैं जो लोग use करते हैं मेरे products को ढूंढने के लिए, मेरे products के pages तक पहुंचने के लिए. First of all, you need to have an understanding of that. If you start bidding on those keywords, you will be able to show your ads, provided you have a strong quality score. हमने कल quality score की भी बात की थी in the last session, and quality score is basically a score given to you for every keyword set that you bid on, and ये score इस पे depend करता है कि जो search किए जा रहे हैं keywords हैं उससे कितना उससे related और relevant कितना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके लैंडिंग पेज पे है. दैट मीन्स आप जो ऐड दिखाएंगे और जो लैंडिंग पेज आएगा उस लैंडिंग पेज पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो कितना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है. इन दिस केस फॉर ऑस्ट्रिया टूर दैट विल डिफाइन
द क्वालिटी स्कोर. अगर आपका क्वालिटी स्कोर हाई है, there is obviously you will obviously be ad rank 1. अगर आपका क्वालिटी स्कोर लो है, then you will get subsequent rankings. Okay, that's how Google AdWords works. This was our session till yesterday. Do ads differ on the basis of person and place? If me and my mom search for the same product, would the sequence of ads be the same for both of us? Very interesting question. The question is, अगर मैं और मेरी मदर दो अलग डिवाइसेस पे हैं और हम ऑस्ट्रिया टूर सर्च करते हैं, क्या हम सेम सर्च रिजल्ट्स देखेंगे? द आंसर इज नो. एंड एज आई वाज टेलिंग यू, गूगल सर्च इंजन एल्गोरिथम क्या करता है, कोई भी रिजल्ट दिखाने के लिए सबसे पहले देखता है कि, और लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक रिजल्ट्स दिखाने के लिए वो सबसे पहले ये देखता है कि जो कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं उससे सबसे ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन से वेबसाइट्स पे है, एंड उनको एक पेज रैंक देता है. And of all the parameters that it considers, it also, one of the parameters it also considers is who is searching. Even for even for ads that you see, for ad ranks, ad rank decide करने के जो parameters हैं Google के, उसमें one of the parameters is also that who is searching, whether it's a male, female, where does he live, etc. Basis the profiling that it's already done for you, which is why you will see that in most cases, different people see different people see different types of सर्च रिजल्ट्स. ये सर्च रिजल्ट्स भी अलग होते हैं, एड्स भी अलग होते हैं. कभी कभी आप देखते हैं कि आप और आपका दोस्त आपस एक दूसरे के आसपास बैठे हुए हैं, लेकिन आप दोनों जब सेम कीवर्ड सर्च करते हैं, दोनों को डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं. दैट्स बिकॉज यू आर ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर्स इन द सर्च इंजन, इन द एल्गोरिथम्स, टू आइडेंटिफाई आपको क्या दिखना चाहिए. Okay, now if you guys are on a desktop, it's great. What we're gonna do now is I'm gonna teach you how to really run ads. And to run ads, what we're gonna look at is how do you use the Google AdWords console. Now, जितने भी ads serve होते हैं Google search pages पे, they are served by Google's property. पहले उसका नाम Google AdWords हुआ करता था. Now they call it Google Ads. So Google Ads console पे हम जाएंगे. If you're on a desktop, you can try doing this along with me. If uh, if you think that it's too fast or it's too complicated for you to be doing it by yourself, then just keep following your screen and just keep following on what I'm doing. Anyways, these sessions are available on the link, so आप वापस आके फिर देख सकते हैं कि ये exactly कैसे चलता है. So I'm gonna move over and I'm gonna share my browser now. Uh, the screen that you're seeing, मैंने Google में लिखा है जाके Google AdWords. When I say Google AdWords, it shows me this link called Google Ads. Okay, this is Google's console. अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने Google के ad पे ही क्लिक कर रहा हूँ मैं. ये Google खुद अपना ad दिखा रहा है, where Google is telling you how to run Google Ads. Now, if I click on the Google Ads link, it takes me to the AdWords console, and you will eventually come to this screen. हो सकता है आप ये screen तक नहीं पहुंचे हो. मैं screen पे automatically इसलिए पहुंच गया हूँ because I'm already signed in by this email ID. अगर आप नहीं हैं तो please sign in to this email ID, to your own Gmail ID. अगर आप Gmail में खुद साइन इन करेंगे, सो यू विल रीच दिस पेज, जहाँ पे गूगल मुझसे सबसे पहले पूछ रहा है कि आप एड्स तो दिखाना चाहते हैं, बट व्हाट्स योर गोल, ये एड्स आप क्यों दिखाना चाहते हैं. डू यू वांट टू गेट मोर कॉल्स, व्हिच मींस गूगल एड्स में जितना ज़्यादा हो सके मेरा फ़ोन नंबर को एम्पलीफाई करेगा, सो दैट पीपल हु सी, आपने देखे होंगे इस टाइप के एड्स आपके फ़ोन में आते हैं जहाँ पे ऐड होता है और ऐड के नीचे लिखा रहता है कॉल नाउ, एंड आप कॉल नाउ बटन दबा के डायरेक्टली उस बिजनेस से को कॉल लगा सकते हैं. सो गूगल आपसे वही पूछ रहा है कि क्या आप ऐसे एड्स चलाना चाहते हैं वेर यू वांट टू जनरेट मोर कॉल्स, डू यू वांट टू गेट मोर सेल्स और साइन अप्स ऑन योर वेबसाइट. सेकंड ऑप्शन में वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपको ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करना है आपके बिजनेस के लिए. थर्ड ऑप्शन में वो मुझसे पूछ रहा है, डू यू वांट टू गेट मोर फिजिकल, do you want to get more visits to your physical location, which means do you want to get वो basically मेरे location, मेरे maps, GPS को amplify करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताने की कोशिश करेगा कि मेरा business कहाँ exist करता है. Okay,
For the convenience of understanding, what I'm going to do is I'm going to say get more website sales or signups, which basically means I'm trying to get more traffic. जब मैं next करता हूँ, वो start कर देता है मेरे लिए एक नया campaign बनाना. वो मुझसे पूछता है what business do you want to advertise? Okay. आपसे भी पूछेगा आपका बिजनेस कैटेगरी क्या है. आपकी जो भी बिजनेस कैटेगरी है आप उसमें डाल सकते हैं. इट्स एडिटेबल. मैंने जस्ट फॉर ईज यहाँ पे लिख दिया है डिजिटल मार्केटिंग. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग की क्लास को के लिए विजिट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. हम एक डिजिटल मार्केटिंग क्लास चलाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इस क्लास का नाम है फॉर द लैक ऑफ बेटर आइडियाज आई जस्ट कॉल्ड www.abc.com. ओके. जब मैं ये डिटेल्स डालता हूँ और मैं नेक्स्ट दबाता हूँ एंड यू कुड पुट दिस फॉर योर ओन बिजनेस, इट ब्रिंग्स मी टू द स्क्रीन. ओके. फॉर दोज ऑफ यू हु आर डूइंग दिस एक्सरसाइज विद मी, प्लीज ट्राई एंड रीच हियर. मैंने अभी तक गूगल एडवर्ड्स में लॉगिन किया है. लॉगिन करने के बाद मैंने अपने बिजनेस की वेबसाइट का नाम डाला है और मैंने अपने वेबसाइट का अपने अपने बिजनेस का नाम लिखा है और यूआरएल डाला है. And when I press next, it brings me to this screen which asks me, where are your customers? किसको ad दिखाना है? Location क्या है इन लोगों की? If you don't have a website, तो अभी आप कुछ arbitrary डाल सकते हैं और you can leave it blank. I don't think वो blank leave करने पे आगे जाएगा. अभी कुछ arbitrary लिख दीजिए आप. But it's a good idea to have a website. Okay. Can we make two different business ads? Yes, आप multiple ads चला सकते हैं. In fact, Google की खासियत यही है कि आप A/B इसको digital language में A/B testing बोलते हैं. आप multiple types of ads चला सकते हैं. And what multiple types of ads help you do is that Google खुद आपको बताता है कि which ad is getting more clicks, which ad is working out better. And then you can always identify which ad works better for you and you can stop the other ads. A/B टेस्टिंग बोलते हैं इसको. यू कैन एंड इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं. यू कैन ऑप्टिमाइज योर एड्स basis what works better. I'm guessing for those of you who were with me, I hope you've reached this place. I'm at the page where Google मुझसे पूछ रहा है where are your customers. मुझे Google को बताना है मुझे जिन लोगों को एड्स दिखाना है वो कहाँ पर है. Now when I reach this page, the interesting thing that you should notice is it asks me find areas or a radius where you would want to advertise. Let's just draw a blank for now. So right now Google मुझसे पूछ रहा है where are your customers. आपको आपकी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक लेके आना है. और यहाँ पे एक मैप बना हुआ है. ये एक वर्ल्ड मैप है. बेसिकली आई कैन पॉइंट आउट एंड टेल हिम कि आप उन लोगों को एड्स दिखाइए जो वर्ल्ड के इस पार्ट में रहते हैं. What I'm gonna do is I'm gonna say my customers live in a specific area. And I'm gonna say the area where my customers live is India. When I say India, it gives me an option of country. And when I say India, उसने नीचे India को highlight कर दिया है. What you will also notice is यहाँ पे एक number लिखा हुआ आ गया है. Potential audience size, which is about 321 million. 321 million या फिर 32 करोड़ 32 करोड़ लोग हैं जो इंडिया में प्रेजेंट है जो गूगल यूज कर रहे हैं. सो गूगल ने बेसिकली क्या किया है, जैसे ही मैंने यहाँ पे इंडिया लिखा है एंड आई वाज टेलिंग यू कि हर इंसान का प्रोफाइल बनता है गूगल पे और गूगल उस प्रोफाइल के हिसाब से एस्टिमेशंस लगाता है कि किसी भी ब्रांड के लिए अगर एड्स दिखाना है तो वो एड्स कितने लोगों को दिख सकते हैं. इन आवर केस मैंने चूज किया था अपने बिजनेस का नाम मैंने लिख दिया था दैट ओके आई एम ट्राइंग टू रन अ डिजिटल मार्केटिंग क्लास. My website name is abc.com, which is not actually a website. It's just an arbitrary name. But जब मैंने ये लिखा तो and when I said that मेरी audience वो audience है जो पूरे इंडिया में कहीं भी रहती है. Let's say हम एक business start कर रहे हैं जो digital marketing पढ़ाएगा and this business is going to be online. So basically our audience is anywhere in India. Let's take India for example क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश में पढ़ाते हैं. सो जैसे ही मैं इंडिया लिखता हूँ गूगल हाईलाइट कर देता है और गूगल एक एस्टिमेट लगाता है कि अप्रोक्सीमेटली 32 करोड़ लोगों ने इंटरनेट यूज किया है
और रादर गूगल यूज किया है इन द लास्ट 1 मंथ. नाउ दिस इज नॉट अ फिक्स नंबर, बट गूगल का ये एस्टिमेट है बेसिस कितने लोगों ने आके गूगल सर्व किया है, गूगल के सर्च या गूगल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज किए हैं. एंड वो बताता है ऐसे 32 करोड़ लोग हैं, विच इज लार्जली द होल ऑफ इंडिया. इंडिया में 130 करोड़ जनता है. 130 करोड़ जनता में से अबाउट 45-50 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं. गूगल ने अपना एस्टिमेट खुद लगाया है पिछले महीने का, तो उसको ये समझ में आ रहा है कि 32 करोड़ तो आए हैं जो गूगल यूज करने आए हैं. If I change this number, if I change the location, you will see this number change as well. So for example, suppose I'm a business which is not an online business. Suppose I'm a business that does actual delivery. मैं last पुराना example लेते हैं हमारा. Suppose मैं apparel store हूँ, मैं कपड़े बेचता हूँ. अपने वेबसाइट से ग्राफिक टी शर्ट्स बनाता हूँ, ग्राफिक टी शर्ट्स को एम्पलीफाई करता हूँ और इनको डिलीवर करता हूँ. और बट मेरा एक इशू है, मेरी ग्राफिक टी शर्ट्स मैं खाली डिलीवरी दे पाता हूँ महाराष्ट्र के अंदर, मैं पूरा इंडिया नहीं कर पाता हूँ. सो आई कैन ऑल्सो चूज टू ओनली मार्केट टू महाराष्ट्र. लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई से महाराष्ट्र. When I select Maharashtra, you see it's selected Maharashtra on the map. And यहाँ देखिए क्या हुआ है, वो 32 करोड़ का नंबर अबाउट 5.6 CR हो गया है, अबाउट 56 मिलियन. सो पूरे भारतवर्ष में 32 करोड़ लोग थे. महाराष्ट्र में गूगल के एस्टिमेट के हिसाब से अबाउट 5.6 करोड़ लोग हैं जिन लोगों ने गूगल यूज़ किया है इन द लास्ट 30 डेज. सो इससे मुझे अंदाज़ा आता है कि मैं कितने लोगों तक पहुंच सकता हूँ, कितने लोगों को गूगल ने प्रोफाइल करके रखा है, जिनको मैं टारगेट कर सकता हूँ. अगर मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूँ एंड मैं इसे मुंबई बना देता हूँ, सपोज मैं एक ऐसा ब्रांड हूँ जो खाली मुंबई में डिलीवरी देता है, देन आई विल सेलेक्ट मुंबई. And it will tell me that in India there are about 2.5 CR people, 2.5 crore people who are accessing Google. Okay, so this is basis Google's own estimates. Google ने पिछले 30 days का estimate लगाया है to understand कि 2.5 करोड़ जनता तो है जो Google यूज करती है. अब जैसे जैसे मैं अपना टारगेटिंग और नैरो करता जाऊंगा, वैसे वैसे नंबर छोटा होता जाएगा. सो सपोज मैं अगर गूगल को बोलता हूँ, और ये ऑप्शंस आगे आपको दिखाई देते हैं, आज मैं आपको सारे नहीं दिखा पाऊंगा, बट जैसे मैं प्रोफाइलिंग के ऑप्शंस बता रहा था, अगर मैं कहूँ कि इस 2.5 करोड़ में से मुझे खाली मेल ऑडियंसेस को टारगेट करना है क्योंकि मेरी ग्राफिक टी शर्ट्स खाली मेल ऑडियंसेस पहनती है, सो मेरे ख्याल से अबाउट ये नंबर 30-40% और कम हो जाएगा. सपोज ये 2.5 करोड़ मेरे ख्याल से शायद 1.5 या 2 करोड़, 1.25 करोड़ बन जाएगा. सपोज मैं उसके अंदर और एक लेयर डाल देता हूँ कि सिर्फ मेल ऑडियंस को मुझे ऐड दिखाना है, प्लस उनका एज ग्रुप लेट्स से 14 to 24 होना चाहिए, तो फिर शायद वो नंबर और 50 लाख से घट जाएगा और 1 करोड़ हो जाएगा. सो आप जितना ज़्यादा नैरो करते जाते हैं आपके टारगेटिंग को, उतना ज़्यादा वो नंबर स्मॉल होता जाता है. गूगल खाली उन बिहेवियर्स, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे ऐसी ऑडियंसेस को निकालने की कोशिश करता है. व्हाट ऑल्सो हैपेंस इज समटाइम्स हम कुछ ऐसे बिजनेसेस में इन्वॉल्व रहते हैं जिन बिजनेसेस में आपके पास पैन इंडिया डिलीवरी है ही नहीं, और रादर पैन सिटी डिलीवरी भी नहीं है, स्पेशली फॉर वेरी कैचमेंट ओरिएंटेड रिटेल बिजनेसेस जैसे रेस्टोरेंट्स. रेस्टोरेंट्स में नॉर्मली लोग 5 से 6 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं. दैट्स व्हाट रिसर्च सेज. व्हेन दे वांट टू गो टू अ रेस्टोरेंट 6 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं. सो अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो क्या मुझे पूरे बॉम्बे में एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए? मे बी नॉट. The other option that Google gives me is radius targeting. ये second option है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, and I can then select a radius around which I want to run an ad. Suppose मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, मेरा रेस्टोरेंट बॉम्बे में अंधेरी में है, तो मैं यहाँ लिखूंगा अंधेरी. And when I say अंधेरी महाराष्ट्र, it tells me about 3.7 crores. ओके, नंबर कुछ गलत दिखाई दे रहा है. ओह, 3.7 crores इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज अंधेरी तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, पर मेरा रेडियस 25 किलोमीटर है. मैं वही सोच रहा था नंबर इतना बड़ा क्यों आ रहा है. 25 किलोमीटर का रेडियस अराउंड अंधेरी, मतलब बॉम्बे के बाहर निकल गया हूँ मैं.
नॉर्मली लेट्स से मैं जानता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलोमीटर का रेडियस यूज़ करता हूँ मैं। सो मैं देख रहा हूँ अगर अंधेरी यहाँ कहीं होगा तो मे बी मैं कांदिवली तक पहुँच गया हूँ इस साइड पे, मैं शायद इस साइड पे बांद्रा तक पहुँच गया हूँ। एंड इस पर्टिकुलर रीजन में 8 किलोमीटर के रेडियस में जो भी इंसान गूगल यूज़ करेगा उसको मेरा ऐड दिखना चाहिए। एंड गूगल का एस्टिमेट है कि ऐसे अबाउट 49 लाख लोग हैं। देयर आर 49 लाख पीपल जिनको मैं अपना ऐड दिखा सकता हूँ। ओके, सो कहने का मतलब ये है, आपका जैसे भी आपके बिजनेस का डिलीवरी पॉसिबिलिटी है, आप गूगल पे जियो, इसको टेक्निकल वर्ड्स में जियो टारगेटिंग भी कहते हैं, जियो फेंसिंग भी कहते हैं। मैंने एक जोग्राफिक फेंस बना दिया है, मैं एक जियो फेंस के अंदर अपने एड्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खाली एक सर्टन ऑडियंस को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो प्रोबेबली, जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है वो मेरा प्रोडक्ट खरीदें। इज अ गूगल अकाउंट नेसेसरी टू मेक एन एड? यस, यू विल टू एक्चुअली, अगर आपको गूगल जैसे एड्स रन करता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज है जिनके थ्रू आप एड्स रन कर सकते हैं। गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड वंस। अगर आप गूगल के थ्रू एड्स रन करते हैं देन यू विल नीड टू हैव अ गूगल एडवर्ड्स अकाउंट। दी एडवर्ड्स अकाउंट इज फ्री। सो अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो आपके पास एडवर्ड्स अकाउंट भी आपने देखा ही होगा एनीवेज ऑन योर फोन। एवरी गूगल प्रॉपर्टी हैज अ सिंगल साइन ऑन। अगर आपके पास एक गूगल आईडी है, एक जीमेल आईडी है, आप गूगल के सारे प्रोडक्ट्स में लॉग इन कर सकते हैं। सो एडवर्ड्स का ऑटोमेटिकली आपके पास एक्सेस आ जाता है। सम ऑफ यू मस्ट हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन राइट नाउ बिकॉज यू हैव अ जीमेल आईडी। For organic, please also advise the process. For organic, I have given a session on SEO. SEO is the answer for it. You may want to see that session again. Can you restrict the person who can click for organic display? No, you cannot restrict it for organic. Organic के लिए कोई restriction नहीं है. Organic is just about Google finding the right website for the right consumer. इसलिए organic में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं. You can just try and try your best endeavor to do good SEO to become page 1, rank 1. लेकिन आप geo targeting organic में नहीं कर सकते हैं. Good question. Another question here is, so while you're targeting ads with Google, does it send it to people who are permanently staying in a radius, or is it targeting people who are traveling within that radius? I think my understanding is that it's about traveling in that radius, because Google largely, as I was saying last time, काफी कुछ आपके location के बारे में जानता है through your GPS, settings and how you use GPS. So I think it works mostly on who's traveling in a particular location. आपने नॉर्मली देखा ही होगा, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता भी है, आप किसी अलग कंट्री में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके एड्स चेंज हो गए हैं, अलग लैंग्वेज में आ रहे हैं। कभी कभी इंडिया में भी होता है, आप अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग टाइप के एड्स देखने लगते हैं। फेसबुक, इंस्टा पे भी ये काफी बार होता है। कैन वी नो हाउ मेनी पीपल आर व्यूइंग आवर रिजल्ट? यस, इन ऑर्गेनिक के लिए यू कैन नो हाउ मेनी पीपल आर सीइंग योर एड। ऑर्गेनिक के लिए आपको नहीं पता चल पाता है। ऑर्गेनिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक के लिए आप आपका मंथली ट्रैफिक या डेली ट्रैफिक देख सकते हैं कि डेली आप कितना ट्रैफिक जनरेट करते हैं। इन ऑर्गेनिक एड्स के लिए आप गूगल एडवर्ड्स कंसोल पे देख सकते हैं ऑन एवरी सिंगल डे आप कितने क्लिक्स जनरेट कर रहे हैं। ओके, ओके, लेट्स गो बैक टू आवर एड्स नाउ। आई एम गोइंग बैक टू द स्क्रीन वेयर आई वाज एंड okay, so let's, for convenience to get better numbers, I will turn this back to India and oh sorry, मैं radius पे हूँ. I'll change it to location. I will select India. It tells me 32 crore people, targets everybody in India. When I go next, ये मुझसे पूछता है which language do you want to advertise in? I selected English. उसने खुद ही कुछ बिजनेस कैटेगरीज मुझे दिखा दी हैं। आपको शायद अलग कैटेगरीज दिखाई दे रही होंगी। मैंने डिजिटल एजेंसी एक कैटेगरी चूज किया है। इफ योर कैटेगरी इज नॉट देयर तो फिर आप यहाँ पे डाल दीजिए ऑटोमेटिकली। इट विल हेल्प गूगल एल्गोरिथम्स अंडरस्टैंड बेटर किसको टारगेट करना चाहिए। what specific products or service do you want to promote in this ad? Well, I'm going to position myself as a digital agent, as an advertising agency. तो मैं ये ऑप्शंस डालूंगा।
Please put your options as per your own businesses. And I say next. Okay. Now what it's telling me is let's write your ad. Okay. अगर आप गूगल का कोई भी ऐड देखते हैं तो वो इस तरह सा दिखाई देता है, और ये जो ऐड है ये वही है जो यहाँ लिखा हुआ है. सो जैसे जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी अपडेट करता हूँ, आप देखते हैं कि ये राइट साइड में मेरे ऐड प्रीव्यू में दिखाई देता जाता है मुझे. ओके. नाउ एवरी गूगल ऐड, टेक्स्ट ऐड, एंड वी आर राइट नाउ ऑन गूगल सर्च, तो हम सर्च एड्स की बात कर रहे हैं. सर्च ऐड इस तरह दिखाई देता है. इसमें दो हेडलाइंस होती हैं, बीच में एक डिवाइडर है, ये एक हेडलाइन है, ये दूसरी हेडलाइन है. इसमें एक डिस्क्रिप्शन होता है और इसमें एक वेबसाइट का नाम लिखने की जगह होती है. ओके. आई हैव, इधर मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे पास हेडलाइन 1 लिखने के लिए 30 कैरेक्टर्स की लिमिट है. मतलब मुझे 30 लेटर्स लिखने हैं जिसके अंदर मुझे अपने बिजनेस को डिफाइन करना है. हेडलाइन 2 के लिए अगेन मेरे पास 30 कैरेक्टर्स हैं जिसमें मुझे डिफाइन करना है. मेरा यूआरएल उसने पहले ही पिक कर लिया क्योंकि मैंने पहले डाला था. एंड मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिखना है जिसका लिमिट 90 कैरेक्टर्स है. 90 कैरेक्टर्स के अंदर मुझे अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है. नाउ लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट एडवर्टाइजिंग. when you write ads on Google, you have to be very specific to your business. अगर आप अपने एड्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी एजेंसी आपके लिए एड्स लिख रही है, इन एड्स के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं. वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस यू विल नोटिस इज दैट मेरे एड में हर पहला लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज कैपिटलाइज्ड. नाउ व्हेन यू थिंक बैक, जब आप मोस्टली गूगल सर्च एड्स देखते हैं, आप खुद नोटिस करेंगे मोस्ट सर्च एड्स में पहला लेटर कैपिटलाइज्ड होता है. एंड दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ रिसर्च. दे से दैट जिन एड्स में पहला लेटर कैपिटलाइज्ड होता है, people's probability and propensity to click on those ads is higher. So you will notice in my ads, पहला लेटर हर जगह मैंने कैपिटलाइज किया है. इट्स अ गुड प्रैक्टिस, आपको करना चाहिए. मेरे एड में मैंने लिखा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, टॉप ट्रेनर्स ऑफ इंडिया. पे केयरफुल अटेंशन टू दीज वर्ड्स आई एम राइटिंग. बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज. तो ये कंपनी क्या करती है, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज देती है, प्लस इसके पास टॉप ट्रेनर्स हैं. आपको एग्जैक्टली यही करना है. आपको पहले डिस्क्रिप्शन में ट्राई एंड डिफाइन व्हाट योर बिजनेस इज अबाउट, एंड इन द फर्स्ट सेकंड डिस्क्रिप्शन ट्राई एंड टॉक अबाउट वन की यूएसपी ऑफ व्हाई यू आर इन दिस बिजनेस. ओके. यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने वर्ड यूज किया है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज. मतलब इससे अच्छे तो मिलने नहीं है आपको. सेकंड हेडर में मैंने लिखा है टॉप ट्रेनर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा यूएसपी है और ये मेरी इमेजिनरी कंपनी का बहुत बड़ा यूएसपी है कि यहाँ पे सबसे इंडिया के सबसे बेस्ट ट्रेनर्स आते हैं. मेरे पहले 30 कैरेक्टर्स इसी में खत्म हो गए थे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज. सेकंड वाले में 21 कैरेक्टर्स निकल गए, टॉप ट्रेनर्स ऑफ इंडिया. और उसके बाद मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा है वेयर आई हैव सेड लर्न हैंड्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम द टॉप ट्रेनर्स एट 5999 ओनली. ओके. ये भी मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है. मैंने लिखा है लर्न हैंड्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग. हैंड्स ऑन का मतलब ये होता है खुद से आप करिए अपने हाथों से और खुद सीखते जाइए. ये हैंड्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट सीखता हूं तो मुझे थियोरी नहीं, मुझे प्रैक्टिकली भी आना चाहिए. एंड वो प्रैक्टिकली, मैं इस इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड लर्न प्रैक्टिकल्स, मैंने हैंड्स ऑन यूज कर लिया है, विच इज लाइक अ मोर आई वुड से करंट और अ मोर मॉडर्न वे टू से द सेम थिंग. So I am saying learn hands-on digital marketing from the top trainers, and I'm also saying at 5999 only. Why am I doing this? I am saying these words because इससे immediately consumer को पता चल जाता है. मैं उन सब लोगों को छाट देता हूँ जो 6,000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं immediately. So the point of putting a pricing there and saying it as only or buy now या फिर क्लिक नाउ, दीज आर ऑल थिंग्स दैट आई पुट इन माई एड सो दैट एक अर्जेंसी क्रिएट हो. सेकंड इज मैं कॉस्टिंग डालता हूँ ताकि मैं खाली उन लोगों से क्लिक्स लेके आऊँ, खाली उन लोगों का ट्रैफिक जनरेट करूँ जो मेरा प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं. ओके. सो आई से टॉप ट्रेनर्स एट 599 ओनली. नाउ अगर आप पैरेलली कर रहे हैं ये एक्सरसाइज अपने कंसोल पे, सो ट्राई राइटिंग योर ओन एड. I see a lot of entrepreneurs write, when they write ads, they end up using a lot of इंग्लिश जार्गन्स और एडजेक्टिव्स जो इतने नेसेसरी नहीं है.
सो फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस मत लिखिए. डोंट से थिंग्स लाइक वी आर द बेस्ट प्रोवाइडर्स ऑफ सैनिटरी वेयर. डोंट से वी आर द. आपको ये एड में लिखने की जरूरत नहीं है. आप खुद नोटिस करिए, नॉर्मली लोग एड्स कैसे देखते हैं. लोग एड्स वैसे ही देखते हैं जैसे मैं और आप देखते हैं. हमें आधे टाइम तो एड्स दिखाई भी नहीं देते हैं. वी हैव अ ब्लाइंड स्पॉट फॉर एड्स. सो जो एड्स होते हैं उसमें से हम एक्चुअली पता है क्या देखते हैं. हम कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको भाप लेते हैं. हम कुछ कीवर्ड्स जो हैं जो हमारे दिमाग में कैप्चर हो जाते हैं. इस एड में भी अगर आप देखें तो इसमें ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं. बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, टॉप ट्रेनर, हैंड्स ऑन, 599. ये सब चीजें इसलिए डाली है क्योंकि मुझे पता है लोग इस एड को नहीं पढ़ेंगे. बट मुझे ये पता है कि इसके जो कीवर्ड्स हैं वो हैमर होंगे लोगों के दिमाग में. सो आपको भी अपना एड इस तरह से लिखना है जहाँ पे आप इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग वो कीवर्ड्स आप इस तरह से डालिए कि वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लगे. वो इंग्लिश ग्रामर में भी बराबर लगना चाहिए. But it does not need to be a complete full sentence to say we are the most beautiful or we have the most beautiful design. नहीं, आपको वो सब लिखने की जरूरत नहीं है. You can just start by saying best designs or Italian designers or some USP about your business, which is just a keyword, which is not an entire statement. When I see entrepreneurs write ads, मैं ऐसा भी देखता हूँ बहुत सारे entrepreneurs अपने ads में बहुत सारा jargon लिख देते हैं, बहुत सारी technical language लिख देते हैं, saying that they will use words which most people don't even understand meanings to. The whole idea about ads is that you keep them simple, plain and easy to understand. मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ. एक बार मेरी टीम ने मुझे ये बात कही थी कि हम एड्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. सो अगर हमारे पास 30 एंड 90 कैरेक्टर्स हैं तो हम उस 90 कैरेक्टर्स में भी हर एक कैरेक्टर को जूस करने की कोशिश करेंगे. मतलब हर जगह एक अच्छा ऑफर डालेंगे और उसी एक दो लाइंस में 5-6 ऑफर डालने की कोशिश करेंगे. समटाइम्स बिजनेसेस में ऐसा होता है, दे रन 5-6 ऑफर्स. कुछ पेमेंट, यू नो कोई कहीं जगह कोई क्रेडिट पेमेंट प्लान होता है, कहीं पे कुछ प्रोडक्ट में डिस्काउंट होता है, कहीं पे कुछ दिवाली ऑफर होती है. when we ran these kind of ads, we realized that जिन ads में हम बहुत सारी चीजें एक साथ communicate कर रहे हैं, लोगों को वो नहीं समझ में आ रहा है. People don't understand when you put too many things. People understand simple things. First of all, they don't even read your ads, honestly. I don't read ads, you don't read ads. Let's be honest about that. So idea ये है कि आप एक top set of keywords डालें, simple English रखें, बहुत सारे offers नहीं डालें, कुछ important offers डालें, and also उसकी language simple रखें. Okay. Someone was asking me on this chat that can I run multiple ads? Yes, it gives you the opportunity. इधर आप देखेंगे, write another ad. I can write another ad. अगर आपके पास 2-3 ऑफर्स हैं, it's a good idea to A/B test them. आप 2-3 अलग-अलग एड्स चलाइए और फिर देखिए which ad is getting you better clicks. जिस एड पे ज्यादा क्लिक्स होंगे फिर आप खाली उस एड को कंटिन्यू करिए, बाकी सबको आप ऑफ कर सकते हैं. ओके, आई विल गो प्रेस नेक्स्ट नाउ. ओके, इसने एक आर्बिट्री बजट ले लिया है. ये मुझसे बता रहा है कि ओके नाउ सेट द बजट, आप कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं पर डे. इसने एक आर्बिट्री बजट लिया है विच सेज स्पेंड 493 रुपीज ऑन डेली, ऑन अ डेली एवरेज. अगर आप 493 रुपीज करेंगे तो आप अबाउट 15,000 रुपीज स्पेंड करेंगे एक महीने में. एंड इस 15,000 में आपने जो टारगेटिंग दी थी उसमें से आप बिटवीन 11 से 19,000 लोगों तक अपना एड दिखा पाएंगे. ओके, नाउ इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपका एड, आप जब एड दिखा रहे हैं तब दूसरे कितने लोग एड्स दिखा रहे हैं, आपका क्वालिटी स्कोर कैसा है, आपकी एड रैंक कैसी है. अगर आपका क्वालिटी स्कोर दूसरे लोगों के साथ क्लैश हो रहा है, देन आपकी बिड वैल्यू क्या है, आप कितना पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल्सो आप जिस जनता को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से कितनी जनता, जब आप ऐड करने, जिस मंथ में आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से कितनी जनता एक्चुअली ऑनलाइन आती है. बहुत सारे पैरामीटर्स है. तो बेसिस दोस पैरामीटर्स इट्स सेइंग कि इफ यू स्पेंड अबाउट 15,000 bucks month, you'll end up probably showing your ad to 11 to 19,000 people. It also says that this will lead to about 490 to 840 clicks per month. ठीक है, याद रखिएगा हमने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था कि हम ट्रैफिक जनरेशन एड्स कर रहे हैं. तो जब हम ट्रैफिक जनरेट करेंगे तो अब यहाँ मुझे पता चल रहा है कि अबाउट स्पेंडिंग 15,000 bucks मुझे अप्रोक्सीमेटली 800 क्लिक्स आने वाले हैं.
ओके, बिटवीन 500 टू 840 क्लिक्स आने वाले हैं। ऐसे ही गूगल कुछ कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है मुझे। अब वो बोलता है कि अगर आप डेली 772 रुपीज स्पेंड करेंगे तो 23,000 आपका मंथ में स्पेंड होगा। बट आपको इनमें से कोई ऑप्शन देना जरूरी नहीं है, आप आपका खुद का भी सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि 770 टू 23,000 अगर आप स्पेंड करते हैं तो आप you'll end up reaching about 17,940 to so between 18 to 30,000 people, and you will get between 70 to 1,300 clicks. अगर आप इतना पैसा स्पेंड करेंगे तो इतना आएगा। मैंने यहाँ पे कस्टम बजट डाल दिया है, सेइंग के मैं 1,000 रुपये डेली स्पेंड करूँगा। गूगल ने एस्टिमेशन लगाया है कि ठीक है आपका स्पेंड 30,400 होगा। ये गूगल ने एक आर्बिट्री नंबर ले लिया क्योंकि गूगल कभी कभी आपके लिए थोड़ा 20% तक ऊपर नीचे भी बिल्ड करता है, तो वो 30,000 के थोड़ा ऊपर पैसा दिखा रहा है। एंड वो ये बताता है दैट आई इन द 30,000 bucks that I spend every day, मैं about 1,000 to 1,600 clicks per month जनरेट कर पाऊंगा। Now question to you as entrepreneurs is which package should you select? How many clicks should you select? Initially आपको experiment करना पड़ेगा। First just begin with generating clicks. Eventually फिर आप ये identify करना आपको जरूरी है, आपको आपकी खुद की funnel define करना जरूरी है कि of all the clicks that you generate, how many of those clicks lead to sales? जितना ट्रैफिक आता है उसमें से कितने लोग आपका प्रोडक्ट एक्चुअली खरीदते हैं। जितने लोग आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें से आप कितना नेट प्रॉफिट कमाते हैं, एंड हेंस उसमें से कितना एडवर्टाइजिंग बजट वापस गूगल में जाना चाहिए। सो इट्स अ सर्कल दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई फॉर योरसेल्फ कि मुझे कितना पैसा कॉन्स्टेंटली गूगल में डालते रहना चाहिए सो दैट मेरा एक एक एवरेज ROI मेंटेन होता रहे। दैट्स हाउ यू डू बजटिंग फॉर योरसेल्फ। राइट नाउ आई एम जस्ट गोना से नेक्स्ट। ओके, इट सेज रिव्यू योर कैंपेन सेटिंग्स। इट टेल्स मी अभी आपने सिलेक्ट किया है आपके बजट के हिसाब से you will do about 11,500 to 19,000 impressions, which is about 500 to 831 clicks. Sorry, एक नया चीज इधर इंट्रोड्यूस हो गया, which is impressions, which I have not taught yet. Impressions का मतलब ये होता है कि Google आपके लिए पहले नीचे वाला तो क्लियर है that 498 to 831 क्लिक्स जनरेट करेगा, बट impressions का मतलब ये होता है कि Google आपका एड अबाउट इन क्लिक्स को जनरेट करने के लिए आपका एड दिखाएगा अलग अलग लोगों को अबाउट 11.5 से अबाउट 19,000 बार, बिकॉज नॉट एवरीवन जिसको एड दिखाया जाएगा वो एड पे क्लिक करेगा। जितने लोगों को एड दिखाया जाएगा, पहले तो सबसे पहले गूगल ने एनालाइज किया कि कितनी जनता है जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं। मैंने इंडिया टारगेटिंग ली, फिर उसने डिफाइन किया कि अच्छा इंडिया टारगेटिंग मतलब 32 करोड़ लोग हैं। फिर मैंने गूगल को बोला मैं 1,000 रुपये पर मंथ पर डे स्पेंड कर सकता हूँ, मैं मेरा बजट 30,000 मंथ है। तो गूगल ने उसमें से एनालाइज किया कि ठीक है 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से हम एक मंथ में आपके लिए अबाउट 498 टू 831 क्लिक्स जनरेट कर सकते हैं। एंड इतने क्लिक्स जनरेट करने के लिए हमको आपका एड दिखाना पड़ेगा अबाउट 11,500 टू 19,000 टाइम्स। ओके, तो उसने एक उसकी रेंज दे दी है कितने टाइम मैं एड दिखाऊंगा। दैट्स कॉल्ड एन इम्प्रेशन। सो टेक्निकल डेफिनेशन इम्प्रेशन की ये है, इट्स द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड लोड्स ऑन समवन्स ब्राउजर। सो गूगल को आपका एड लोड करना पड़ेगा अलग अलग लोगों के ब्राउजर पे अप टू 19,000 times probably to get you about 831 clicks in a month. What it's also telling me is that आप इंडिया में एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये आपका एड कॉपी है, ये आपका बजट है। ओ सॉरी, मैंने 493 का बजट लिया था, 1,000 का नहीं लिया था। एंड देन आई से नेक्स्ट। ओके, जब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आता हूँ तो गूगल मुझे बोलता है कि आप आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालिए और आपका पेमेंट मेथड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालिए। इसके आगे के टारगेटिंग ऑप्शंस मुझे तब दिखाई देंगे जब मैं अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालूंगा। मेरे पास एक दूसरा अकाउंट है, मैं एक्चुअल अकाउंट्स मेरे नाम से, अमन जोशी के नाम से, जिसपे मेरे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, बट ये एक टेस्ट अकाउंट है। मैंने आपको इसीलिए दिखाया बिकॉज आई एम अर्जिंग यू, अगर आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट नहीं है गूगल एड्स रन करने के, अगर आपके साथ कोई और नहीं है जो आपको हैंड होल्ड कर सकता है इसमें, देन इस स्टेप के आगे मत जाइएगा। Or even if you put your credit card details to go ahead and see what are the other targeting options available, then ensure that all your campaigns are in pause state. या तो campaign stopped होनी चाहिए या paused होनी चाहिए।
बिकॉज अगर कैंपेन चालू होगी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐड आपसे गलती से चल जाए, गलत ऑडियंस को चल जाए और शाम को पैसा कट जाए। ये गलती कभी कभी हो जाती है, मुझसे भी हुई है, मेरी टीम से हुई है। सो द आइडिया इज के till you're not very comfortable and completely sure of how the Google AdWords console works, please don't add your credit card information. Okay. इसके आगे मैं बढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालनी है, सो आई एम गोना स्टॉप माय सेशन हियर। दिस इज हाउ गूगल एडवर्ड्स रन्स। आप अपने एड्स चला सकते हैं। फॉर दोज ऑफ यू जिनके पास ऑलरेडी जिन लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड्स लगाए हुए हैं, जिन लोगों के एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, ट्राई डूइंग दिस एक्टिविटी। डोंट रन योर एड्स, पॉज योर एड्स, बट यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करिए। इसके आगे वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा, फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड सिलेक्शन का, कि कौन से कीवर्ड्स पे आप अपना एड्स दिखाना चाहेंगे। वो आपको दूसरे ऑप्शंस देगा कि डू यू वांट टू शो योर एड्स ओनली टू मेल ऑडियंसेस, फीमेल ऑडियंसेस, व्हाट इज देयर एज ग्रुप। फिर आप बहुत सारे प्रोफाइल टारगेटिंग चीजें कर सकते हैं, बट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली दैट बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू डू दैट, because there is a possibility that you might do something where you might end up losing money. Uh, how safe is Google Ads? Well, Google Ads is pretty safe. A lot of people have been using it. You don't have to worry about what's happening in, whatever आपका जो भी पैसा खर्चा होता रहता है, वो आपको दिखाई देता रहता है. So you have the dashboard at the back end. जो डैशबोर्ड मैंने भी आपको दिखाया, जब आपके एड्स रन होने लगते हैं तो कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितना पैसा खर्चा हो रहा है, ये आपको लाइव दिखाई देता है. सो एट एनी पॉइंट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे रोक देना चाहिए अपने एड्स, मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, या इट्स नॉट गोइंग एज आई हैड डिसाइडेड, तो आप रोक सकते हैं उसे. फॉर ऑर्गेनिक, कैन वी यूज गूगल एनालिटिक्स टू ट्रैक आवर व्यूज? यस, गूगल एनालिटिक्स इज अ गुड टूल. गूगल का और एक टूल है जो ऑर्गेनिक में आपको ये एक्सप्लेन करता है आपका करंट ट्रैफिक क्या है. Without placing an ad, can we know how many people have searched our keywords? Yes. Google AdWords कंसोल में आप ये भी कर सकते हैं, आप अलग अलग कीवर्ड्स डाल के ये देख सकते हैं कि उस कीवर्ड का एवरेज मंथली सर्चेस क्या है. दैट इज पॉसिबल. For organic, do we have to have a website, or only contact details are sufficient? I think for every part of digital marketing, having a website is essential. Uh, there is going to be a class on websites also in these sessions. Creating a website is not so tough. You can also go out and get it created by a freelancer outside. I would urge you to have a website before you start any form of Google advertising. Okay. Okay, in my account, I'm having option for 3 headlines and 2 descriptors. Yes, this also happens in some cases. आपको headlines कभी वो अलग दिखाता है और आपको descriptors अलग दिखाता है, but they will always be capped. A good way to run your ads is that have a very clear understanding of the business and the product that you're promoting. And then आपको Google जो भी character limit देता है, उस character limit में try to write your ad in the most concise way, yet in a way that it's effective. Okay, ऐसा होता है कभी कभी कि आपको 3 headlines दिखा देता है, 2 descriptors दिखा देता है, because Google को at that point of time उसका जो ad inventory है उसमें जगह वैसी available होती है. Okay, what is meant by content, affiliate and email marketing? We will take these sessions later. Is it not expensive for an entrepreneur to spend 15,000 for not even half the quantity of clicks? Well, as I said, ये लोगों के दिमाग में notion है that digital marketing is a cheap method of marketing. Actually, it's not a cheap method of marketing. Digital marketing is expensive. It's just that it's better controlled, manageable, and in your hands. आप न्यूज़पेपर ऐड करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड चला जाता है, कभी कभी रियलाइज करते हैं, कभी कभी तो नहीं, बट अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि न्यूज़पेपर में जो ऐड डाला है उसमें कॉल सेंटर नंबर ही अगर आपने गलत डाल दिया है, एक डिजिट गलत है उसका, तो पूरा ऐड नुकसान हो जाता है, ऐड का नुकसान हो जाता है. बट डिजिटली what you can do is you can always bring that ad down, make corrections, edit it and put it back, so it's more controllable as a medium. Is 15,000 more expensive? Yes. The question is not whether it's expensive for everybody. The question is how much are you gaining from it? हो सकता है आपका काम 1,000 रुपए की एडवर्टाइजिंग में ही हो जाए, बिकॉज आपका प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है या फिर उस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है दैट पीपल क्लिक इमीडिएटली, जिसको भी वो ऐड दिखता है वो क्लिक करके उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं.
हाउ विल यू नो दैट अ कस्टमर केम फ्रॉम गूगल? वेल, गूगल के बैकएंड में आपको सारा दिखाई देता है, कितने इंप्रेशंस डिलीवर हुए, कितने क्लिक्स हुए और कितने लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा है। ये सब बैकएंड में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इफ यू हैव एन एजेंसी, यू कैन आस्क योर एजेंसी टू कॉन्फ़िगर इट फॉर यू। Are Google transactions safe? Yes, Google transactions are mostly safe. There has never been an issue where I have I've honestly never seen an issue where someone got mugged on Google. Mostly मेरे तो ads सब सही चले ही हैं. Can we target ads only for desktop or mobile only? Yes, you can also do device level targeting. You may want to show your ad only to people who are on mobiles or on desktops. Mostly people do advertising on both. बट अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जो खाली डेस्कटॉप पे चलती है या फिर आपकी वेबसाइट ऐसी है जो खाली मोबाइल पे चलती है, देन इट्स अ गुड आइडिया टू चूज ओनली वन. यू हैड यूज पैन इंडिया. पैन इंडिया का मतलब होता है पूरा इंडिया. अगर क्लिक्स एक मंथ में पूरे नहीं होते तो क्या मनी कैरी हो जाता है नेक्स्ट मंथ? यस. अगर आपने जितना बिल्ड किया है, जितना पैसा डाला है, उतने क्लिक्स मिले ही नहीं है, तो फिर आपका मनी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है या फिर यूज ही नहीं होता है, वहीं वहीं पड़ा रहता है. एक्चुअली आपका मनी भी नहीं है, वो इट्स अ क्रेडिट कार्ड. तो आपका पैसा कटा नहीं है बेसिकली. पैसा आपका खाली वो कटता है जितने आपके एड्स यूज होते हैं, जितना आपका क्लिक्स आता है. बाय द वे, व्हाइल आई वाज रीडिंग दिस क्वेश्चंस, आई आल्सो रियलाइज दैट ये टाइप की जो एडवर्टाइजिंग है जिसमें हम क्लिक्स पे बिड कर रहे हैं, इसको गूगल में पीपीसी भी कहा जाता है, पेपर क्लिक. What is the minimum budget for ads? I don't think there's a minimum budget. I think you can start with as low as 50 or 100 bucks a day. करके नहीं देखा मैंने कभी, आप ट्राई करके देखिएगा जरूर. Is the amount deducted in one go or gradually? It's deducted every day once, and it is basis the number of clicks on that day. If the product is an international product, the kind of monopoly or has a kind of monopoly uh, for that website or company, does spending on Google ads really works? Well, even if you have a monopoly, the idea is that you should run ads, especially if you're a big brand, because what happens is as soon as you gain monopoly in a market, कोई ना कोई आपका प्रोडक्ट रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है. एंड अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के नाम से एड्स नहीं चलाएंगे, एंड दिस हैपेंस स्पेशली टू बिग ब्रांड्स, अगर आप अपने खुद के नाम से एड्स नहीं चलाएंगे तो आपका कंपेरेटर एड्स दिखाएगा और आपका कंपेरेटर आपके कीवर्ड्स यूज करेगा. सो बेसिकली जब कोई आपके प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो आपका कंपेरेटर एड्स दिखाएगा एंड ही विल ट्राई टू टेक योर ट्रैफिक अवे. एंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट हैपेंस ऑन द इंटरनेट. So if you're a big brand, it's a good idea to run your ads and keep your audiences with you. Can we stop a campaign in between? Yes, you can stop a campaign at any time that you want. Can you decide your own budget? Yes, you can decide your own budget. You can decide your daily budget as well. कम बजट अगर रखते हैं तो क्या किसी और का एड्स सेम कंटेंट और के किसी सेम कंटेंट की एड्स पहले दिखाएंगे या हमारी? नहीं, बजट से फर्क नहीं पड़ता. ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था केयूर इन माय लास्ट सेशन. आई वाज सेइंग दैट आप कितना बजट रख रहे हैं, गूगल पे कितना ज्यादा पैसा खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया. द क्राइटेरिया इज लोग जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उस कीवर्ड से कितना रेलेवेंट आपका एड है और आपका लैंडिंग पेज है. अगर आपका कंटेंट रेलेवेंट है तो अगर कोई और ज्यादा बजट डाल रहा है तो भी आपका एड ऊपर आएगा, बिकॉज योर रेलेवेंस इज हायर. आज हम वहां उस स्टेप तक पहुंच नहीं पाए जहां पे हम कीवर्ड सिलेक्ट कर सके, बट दिस इज हाउ गूगल एड्स वर्क. इसके आगे हम कीवर्ड सिलेक्ट करते एंड देन व्हेन पीपल सर्च फॉर दोस सेट ऑफ कीवर्ड्स, तो हमारा एड ऊपर तब आएगा जब उन कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट हमारी वेबसाइट के अंदर होगा. I'll take the last question. Is it good for startups? Yes, startups should also do it because especially if you're a startup, अगर आपका business proposition बहुत यूनिक है, छोटे बजट से स्टार्ट करिए. पहले ये करके देखिए कि आप जितने क्लिक्स जनरेट कर रहे हैं उसमें से कितना कन्वर्जन आ रहा है.
You never know. If it really works for you, then you may want to continue doing it for the benefit of your business. Okay, thanks guys. Thanks for the session, for attending this session today. Thanks everyone. Goodbye.